हेलो एवरीवन। कोई भी आईटी प्रोफेशनल या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यही मन रहता है कि वो कोई अच्छे कंपनी में जाके बेंगलुरु में सेटल हो जाए। इवन हर स्टार्टअप्स के फाउंडेशन के लिए बेंगलुरु को ही मोस्टली चूज़ किया जाता है। बेंगलुरु हैज़ बिकम द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी हब। पर बेंगलुरु इंडिया का सिलिकॉन वैली बना कैसे? व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड बेंगलुरु सक्सेस? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स डाइव डीप इनटू द हिस्ट्री। द स्टोरी डेट्स बैक टू लेट 18th century. Jamshedji Tata had always wanted to develop a high quality science education institute in Bombay. उस टाइम में इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। जमशेदजी टाटा उनके सामने अपना प्रपोजल रखे। लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड सर विलियम रैमसे, the Nobel Prize winner in chemistry, to analyze the plan. After analysis, Sir William Ramsay recommended the location for the Science Institute to be in Bengaluru. Special mention goes to the then ruler of Mysore, Maharaja Krishnaraja Vaidyar. Under his rule, Bengaluru became the first Asian city to receive electricity. Maharaja Krishnaraja Vaidyar granted 375 acres of prime land at free of cost to Jamshedji Tata for the establishment of the prestigious research institute at Bengaluru. Jamshedji died in 1904 and a few years later 1909 में IISc Bengaluru was established. ऐसे ही भारत को अपना पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट मिला एंड जमशेदजी के सपने पूरे हुए। In 1933, Sir C.V. Raman was appointed as the director of IISc Bengaluru. This renowned institute ignited Bengaluru to be the Silicon Valley of India. आगे 1940s में the government had decided to improve India's condition. It decided to set up defense companies, space agencies like ISI, aeronautical companies. Bengaluru has wonderful climate. It is geographically located away from the borders. इसका मतलब कोई भी युद्ध के समय बेंगलुरु will always be safe. Bengaluru was already an educational hub. IISc के वजह से there were bright minds emerging at Bangalore. Hence, government lost no time in putting all its research investment in the city. Soon, HAL, Hindustan Aeronautics Limited, founded by Walchand Harichand, was set up. ISRO, Bharat Electronics, National Aerospace Labs, Bharat Earth Movers, Hindustan Machine Tools, Indian Telephone Industries, ये सब का स्थापना बेंगलुरु में ही हुआ। ऐसे ही कई डिकेड्स तक इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पुट अ साइजेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बेंगलुरु। बढ़ते हैं आगे 1950s के टाइम में। R.K. बलिगा IISc बेंगलुरु में मास्टर्स कर रहे थे। उनका सपना था कि वो बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाए। बलिगा सर ऑलरेडी न्यू अबाउट द लैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कंप्यूटर चिप्स, द सिलिकॉन वैली एट US. Baliga sir realized that Bengaluru would be the perfect place to set up its own electronics hub. This was the idea of Bangalore being the electronic city or the Silicon Valley of India. Baliga sir approached then CM of Karnataka D. Devraj Urs. थोड़ा ifs and buts के बाद he agreed to the idea. Then Baliga sir was appointed as the chairman of Karnataka State Electronics Department Corporation in 1976. बलिगा सर को 332 एकर्स ऑफ लैंड मिला कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से। डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ एंड फाइनली इन 1978 बेंगलुरु बिकेम द इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन इंडिया। 1980s के टाइम देयर वर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल बिग फर्म्स अराउंड द इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु। उसी टाइम सर नारायण मूर्ति का सपना था कि इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का यूज़ करके इंडिया का कॉर्पोरेट लैंडस्केप को बदलना। He founded Infosys in 1981. Azim Premji, the founder of Wipro, also started his office in Bangalore. ये कंपनीज को बहुत जल्द ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल गए। Soon multinational giants like Texas Instruments, Sun Microsystem, Intel, IBM ने भी अपना ऑफिसेस बेंगलुरु में खोला एंड देयरफॉर ऐसा स्टेज आ गया कि कोई भी छोटी या बड़ी कंपनीज बेंगलुरु में ही अपना ऑफिस खोलना चाहते थे। तो कुछ इस तरह से बेंगलुरु बिकेम इंडियाज़ आईटी हब।
बट हाउ डिड बेंगलुरु बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IT हब? चलिए आगे जानते हैं। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस तरह से बेंगलुरु के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट का ज़रूरत था, वैसे ही इस तरह के कंटेंट लाने के लिए आप लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स मैटर्स अ लॉट टू मी। अब आगे का कहानी में जानते हैं कि बेंगलुरु वर्ल्ड का सबसे बड़ा IT हब कैसे बना। साल 1999 पूरा विश्व में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री Y2K प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। Y2K प्रॉब्लम के बारे में बहुत लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। Y2K स्टैंड्स फॉर ईयर 2000। बेसिकली ये प्रॉब्लम कंप्यूटर्स के डेट फॉर्मेट को लेके था। 1999 के पहले कंप्यूटर में ईयर फॉर्मेट को उसके लास्ट 2 डिजिट से डिनोट किया जाता था। जैसे ईयर 1988 को कंप्यूटर्स 88 से रिप्रेजेंट करते थे एंड 1999 को 99 से डिनोट किया जाता था। 1999 के बाद जब ईयर 2000 आएगा तो 2000 के लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज़ 00 से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ईयर 2000 एंड 1900 में कंप्यूटर को डिफरेंस नहीं पता चलता। दिस वुड डिसरप्ट द होल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम्स। इस बग को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज वुड रिक्वायर ह्यूज वर्कफोर्स। ये प्रॉब्लम दूसरे देश के प्रोग्रामर्स भी सॉल्व कर सकते थे, बट इट वुड इनकर अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंपनीज। प्रोग्रामर्स को मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड में चेंजेस करना था, बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर का ज़रूरत था। सो बेंगलुरु हैविंग सच अ ह्यूज वर्कफोर्स, ऑटोमेटिकली इट बिकेम द फर्स्ट चॉइस फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। बेंगलुरु में कई छोटे ऑफिसेस सेटअप हुए जस्ट टू फिक्स दिस Y2K बग। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप फ्लरिश होता रहा। कंपनीज नॉट ओनली फ्रॉम USA बट ऑल्सो फ्रॉम यूरोप एंड अदर कॉन्टिनेंट्स अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को बेंगलुरु के इन छोटे ऑफिसेज को ठीक कराने के लिए दे दिए। दिस एंटायर सिनेरियो कॉज्ड अ मैसिव बूम इन द IT इंडस्ट्री इन इंडिया एंड इसी तरह से IT रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ भारत के बेंगलुरु में। Parallelly, we should not forget the contribution of then CM of Karnataka, S.M. Krishna. He provided the software industries the impetus to set shops and ensured the city of Bengaluru had right an ecosystem. Krishna sir was instrumental in simplifying the filing system, streamlining of tax and license system. Labor policies को भी बहुत relax किया गया, particularly for IT sectors. Also, liberalization of Indian economy contributed immensely. All this facilitated the availability of manpower and encouraged more companies to start their business in the IT hub. So इस तरह से बेंगलुरु was no longer just an outsourcing hub, but also a viable option for programming and consultancy. As an established IT destination, the next boom for Bengaluru came with the startups. It eventually became a startup hub. बेंगलुरु का IT कल्चर के वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा यंग एज इंजीनियर्स थे। सून एक यंग डायनेमिक कल्चर जो एक स्टार्टअप के लिए ज़रूरत होता है बेंगलुरु प्रोवाइड कर पाया। मोर ओवर कर्नाटका के स्टार्टअप पॉलिसीज ऑल्सो लेड टू द बूम ऑफ स्टार्टअप कल्चर इन बेंगलुरु। एंड देन इवेंचुअली वी हैव बिग सक्सेसफुल स्टार्टअप्स लाइक फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, मिंत्रा, स्विगी, बायजूस, ज़ेरोधा. Also, there were no problems for funding for these startups, as there were a pool of large foreign companies at Bengaluru. So this is the story of Bengaluru, how India's own Silicon Valley was founded and structured. I enjoyed thoroughly while researching for this video. अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस।